خبر، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں۔ ابھی پچھلا مہینہ گزرا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایسا دن نہیں جاتا تھا جس دن ہم لوگوں کے مسجد سے یہ اعلان نہ ہوتا ہو انتقال کا۔ ہر دن آئے دن کسی نہ کسی کا انتقال ہوتا تھا۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بھی میں بول رہا ہوں اگر میری موت کا وقت پورا ہو جائے تو میری روح، میرے جسم سے روح یہیں پرواز کر جائے گی۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھ کے دیکھیے، جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ عمل کر سکتے ہیں، نیکی کر سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد کوئی نیکی نہیں کرتا۔ تو نیکیوں کا ذخیرہ یہاں پر آپ کو بٹورنے کا موقع ملا ہے۔ آپ وہ موقع اپنے ہاتھوں سے نہ آنے دیں۔ ہو سکتا ہے پھر کوئی میلاد کی محفل آپ کے قسمت میں نہ ہو، شاید میری بھی قسمت میں نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ فکر عقبہ کی کل آج ہے بے خبر، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں، اور کل نہ آیا کبھی، کل نہ آئے گا پھر، کل نہ آیا کبھی، کل نہ آئے گا پھر، ارے کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ آج پوری دنیا دولت کے پیچھے بھاگ رہی ہے، لیکن دولت کا کتنا بڑا مقام ہے اس اشعار میں آپ ملاحظہ کر لیں کہ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھولے بیٹھا تھا وہ دین اسلام کو۔ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھولے بیٹھا تھا وہ دین اسلام کو، کہ اس کی دولت سبھی خاک میں مل گئی، اس کی دولت سبھی خاک میں مل گئی، تو ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں، تو ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ فکر عقبہ کی کل آج ہے بے خبر، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں۔ آئیے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اس سنت مبارکہ پہ پھر عمل کریں۔ دیکھیے میرے آقا فرماتے ہیں، اور کچھ باتیں مسئلے مسائل کے سماعت کر لیں۔ یہاں پر آئے ہیں تو آنے کا فائدہ آپ جو ہے کہ یہاں سے اٹھائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے لوگوں، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ بھی بولیں، کیا کر لیا کریں؟ سلام۔ دیکھیے جب آپ بولیں گے تو مجھے یہ احساس ہوگا کہ میں مجمع میں تقریر کر رہا ہوں، ورنہ مجھے یہ معلوم ہوگا کہ میں ہندوستان میں نہیں بلکہ کسی قبرستان میں تقریر کر رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، لوگوں جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ اب مجمع سے ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، ایمانداری سے سنیے گا، مجمع سے ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ اب اگر گھر میں کوئی نہ ہو، گھر کا تالا میں خود کھولوں، دروازہ میں خود کھولوں، کس کو سلام کروں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، لیکن جب گھر میں کوئی نہ ہو کس کو سلام کیا جائے؟ یہ سوال نبی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، جواب سن لیا۔
जवाब सुनेंगे कसम खुदा के, अगर आशिक रसूल होंगे तो मचल जाएंगे। कितना बड़ा फायदा मेरे आका ने फरमाया, सुन लिया। मेरे आका फरमाते हैं मेरे गुलाम, ऐ मेरे दीवाने, जिस मोमिन के घर में, ऐ भी लगा दिया, मोमिन के घर में, सबके घर में नहीं, सिर्फ मोमिन के घर में। मेरे आका फरमाते हैं जिस मोमिन के घर में कोई नहीं होता है, उसके घर में मैं होता हूँ, इसलिए सलाम कर लिया करे। ये सुभान अल्लाह, फायदे की बात है कि नहीं, सिर्फ मोमिन के घर में। अब कितने लोग यहाँ पे मोमिन हाजिर हैं, आप अपने आप से अपने जिंदगी का जायजा लेंगे तो आप फैसला कर सकते हैं, ईमानदारी के साथ सुन लो। अब ये बात मेरे आका ने फरमाया तो मेरे ज़हन में एक सवाल पैदा हुआ, लेकिन सलाम क्या है? एक दुआ है। जब हम आपको सलाम करते हैं अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब होता है तुम पर सलामती हो, आप पर सलामती हो। आप जवाब देते हैं पलट कर वालेकुम अस्सलाम, इसका भी मतलब यही हो सकती है, कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि आका का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर हजरात की बातें झूठी हो सकती हैं, लेकिन फरमान मुस्तफ़ा कभी झूठा नहीं हो सकता। देखिए महफिल पाक में अच्छी बातें ज़बान पर कभी आता है जब मजमा बेदार हो। तकरीर दो चीज़ों पे कामयाब होती है, पहला माइक, दूसरा मजमा। दोनों अगर बेदार हो तो आदमी के जहन में, बोलने वाले के जहन में अच्छी बातें आती हैं। वरना कभी कभी ऐसा प्रोग्राम हम लोग करके गुजर चुके हैं, कहीं कहीं ऐसा प्रोग्राम होता है जैसे एक बजा दीजिए, रिकॉर्डिंग चल रहा है और लोग खामोश होकर बैठे हैं, तो इस तरीके से भी तकरीर होती है। लेकिन आप बेदार रहेंगे तो कुछ अच्छी बातें आपके जहन में उतारने की कोशिश करूँगा। ये और बात है कि मैं आपके मोहल्ले का हूँ, लेकिन ये बार बार आपके सामने हाजिरी होने का ये जो मेरा कौल है, मेरी बात है कि आपको जो है कि बार बार मुझसे मुलाकात करने का मौका नहीं मिलेगा। ये और बात है कि आपके मोहल्ले के हैं, ये इमाम साहब की मोहब्बत और घर वालों की मोहब्बत को मैं आपके बीच हाजिर हुआ। सुन लें आप, दूसरी बात सुन लें। मेरे आका फरमाते हैं जब कोई शख्स मेरी बारगाह में रस्मी तौर पे दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके पढ़े हुए दुरूद पाक को फरिश्ते मेरी बारगाह में पेश करते हैं। कौन पेश करते हैं? फरिश्ते मेरी बारगाह में। मेरे आका फरमाते हैं जब कोई रस्मी तौर पे, आम तौर पे, आगे क्या फरमाते सुनिए, जब कोई शख्स मेरी बारगाह में मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके पढ़े हुए दुरूद पाक को मैं खुद सुनता हूँ, मैं खुद समाअत करता हूँ। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पढ़े हुए दुरूद पाक को मेरे आका सुने, मेरे आका समाअत करे, तो मोहब्बत से एक बार जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफीना अबियाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले महफिल से गुजारिश है कि आप लोग मेरे तरफ देखें। जब मेरे तरफ देखेंगे तो मुझे लगेगा कि आप वाकई सुन रहे हैं। थोड़ी सी और आगे चले देखिए, मिलाद में आने से हमें फ़ायदा क्या मिलता है। आप बहुत मिलाद में बहुत सारे जगह आप जाते होंगे, लेकिन उसका फ़ायदा सुनिए आप। मिलाद में आने से फ़ायदा क्या मिलता है? अगर वाकई मिलाद सुनने के लिए आए तो फ़ायदा सुन लिया। मेरे आका मदीने शरीफ में है, आप मदीने शरीफ के गलियों से गुजर रहे हैं, आपने क्या देखा कि आपके गुलाम के घर के अंदर से कुछ पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। मेरे आका उनके घर में दाखिल हो गए। आप क्या देखते हैं कि मेरा वो गुलाम, मेरा वो दीवाना, मेरा वो चाहने वाला, मेरा वो आशिक अपने बीवी, अपने बच्चों के साथ इकट्ठा एक जगह जमा है, जैसे आप लोग यहाँ पर जमा है। मेरे आका करीब है, जाने के बाद सवाल करते हैं, अरे मेरे गुलाम, अरे मेरे दीवाने, ये क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? अब नबी का वो गुलाम, नबी का वो दीवाना जवाब देता है, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान जाए। ऐ मेरे प्यारे आका, ये आपकी मिलाद की महफिल सजी हुई है, आपकी मिलाद की महफिल सजी हुई है। जरा धीरे से बोले सुभान अल्लाह। आपकी मिलाद की महफिल सजी हुई है। अब आका का जवाब सुनिए आप। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलाम, ऐ मेरे दीवाने, तुम जो ये काम कर रहे हो, तुम जो ये मिलाद मना रहे हो, इसके वसीले से, इसके सदक़े से जब तक ये मिलाद का सिलसिला कायम रहेगा,
صبح قیامت تک جو یہ میلاد منائے گا وہ بخشا جائے گا. کہیے سبحان اللہ. آقا نے کیا فرمایا؟ صبح قیامت تک جو لوگ یہ میلاد کا سلسلہ قائم رکھیں گے، مناتے رہیں گے، وہ بخشے جائیں گے. یہ فائدہ میلاد کا ہے، میلاد میں آنے کا فائدہ ہے. اب تھوڑی دیر کے بعد ایمان کو روشنی دینے کے لیے ایک بات کہہ کر گزر جاتا ہوں، اس کے بعد اپنے موضوع پہ آتا ہوں. سنیے آپ. دیکھیے ابھی بھی کچھ لوگ آنند فانند میں بیٹھے ہوئے، ادھر ادھر ان کی نظریں ہیں، لیکن میری نگاہیں ہر کسی کو دیکھ رہی ہیں. آپ میری نگاہوں سے چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ کی نگاہ سے آپ کبھی چھپ نہیں سکتے. قسم خدا کی ایمانداری سے بیٹھے. بہت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی لوگ میلاد میں آ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. آپ میلاد کا شاید آپ کو مقام معلوم نہیں ہے. میں نے بتایا نا کہ فرشتے یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں. اس کو جنت کی تیاریوں میں سے تیاری بتایا گیا ہے. یہ میلاد کا جو ہے کہ مرتبہ ہے، مقام ہے، آپ اس کا خیال رکھیں. یہ کوئی ہوٹل کا جو ہے کہ ہوٹل کا جگہ نہیں ہے جہاں پر بیٹھ کر ہم دنیاوی باتیں کر سکتے ہیں. میلاد میں آنے کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ جب تک ہم یہاں پہ رہیں گے کوئی گناہ نہیں کر سکتے. آپ اگر چٹی پہ ہوتے تو کسی نہ کسی کی چگلی کر رہے ہوتے، کسی کی برائی کر رہے ہوتے، یا دنیاوی باتوں میں ملوث ہوتے. آپ ہو سکتا ہے گناہ بھی کر رہے ہوتے، لیکن قسم خدا کی یہ میلاد کا فائدہ ہے کہ یہاں آنے والا کوئی شخص گناہ نہیں کر سکتا جب تک یہاں بیٹھے گا ایمانداری سے. وہ گناہ میں ملوث نہیں ہوگا. اس میں ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایک بات بتاتا ہوں، اس کے بعد اپنے موضوع پہ آتا ہوں. دیکھیے مدینہ شریف کا وہ سرزمین ہے. میرے آقا نے اعلان کیا، اے بلال حبشی جاؤ مدینے میں یہ صدا لگا دو. جنگ کی تیاری کرنے کے لیے نوجوانوں کو طلب کیا گیا، طاقتوروں کو میرے آقا نے بلایا، جاؤ مدینے میں یہ اعلان کرو کہ جنگ میں چلنے کے لیے لوگ حاضر ہو جائیں نبی کی بارگاہ میں. حضرت بلال حبشی مدینے میں یہ صدا لگانے لگے. اسی مدینہ شریف میں ایک خاتون تھی، ایک بیوہ عورت تھی جس کے گھر کوئی نوجوان بیٹا نہیں تھا. قسم خدا کی ایمانداری سے سن لیں گے نا تو دل کی آنکھوں سے روئیں گے. ایسا واقعہ پیش کر رہا ہوں، اگر واقعی دل میں محبت رسول ہوگا تب، ورنہ کوئی فائدہ نہیں سننے کا. میرے آقا نے جیسے یہ اعلان حضرت بلال حبشی سے کروایا تو اسی مدینہ شریف میں ایک بیوہ رہتی تھی. اس کے کان سے یہ بات ٹکرائی کہ آقا نوجوانوں کو بلا رہے ہیں، آقا نوجوانوں کو طلب کر رہے ہیں. وہ عورت کے کان سے جب یہ بات ٹکرائی، عورت زار و قطار رونے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ہچکیاں لے کر رونے لگی. بغل میں 6 سال کا بچہ لیٹا ہوا تھا. ماں کے رونے کی آواز سننے کے بعد بچہ نیند سے بیدار ہو گیا. ماں سے سوال کرتا ہے، اے میری امی جان رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی سن لیں آج آپ اپنے بچوں کی کیسی پرورش کر رہے ہیں. آپ نبی کے زمانے کے بچوں کا جو ہے کہ مقام دیکھیں اور ان کی ماؤں کا مقام دیکھیں کہ اپنے بچوں کی کیسی وہ پرورش کیا کرتی تھی. حضرات محترم، 6 سال کا بچہ بیدار ہوا، ماں سے سوال کرتا ہے، اے میری امی جان آپ کو کون سی ایسی تکلیف ہو گئی، آپ کیوں رو رہی ہے؟ ماں جواب دیتی ہے، بیٹا ابھی تیرے پاس اتنا زیادہ عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے کہ تو سمجھ سکتا ہے. لیکن ماں کو روتا دیکھ کر بچہ بار بار سوال کرنے لگا. تو ماں کا جواب سن لیا آپ کی ایمانداری سے. ماں کہتی ہے، میرے لاڈلے سن لیا، ماں کہتی ہے، میرے لاڈلے ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو طلب کیا ہے، جنگ میں جانا ہے، نوجوانوں کو میرے آقا نے بلایا ہے. کاش میرے گھر میں کوئی نوجوان بیٹا ہوتا تو نبی کے قدموں پہ اسے نچھاور کر دیتی. اللہ اللہ. ماں نے جب بیٹے سے کہا، 6 سال کا بچہ ہے، کتنا بڑا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. 6 سال کا بچہ جواب دیتا ہے، میری امی جان آپ چپ ہو جائیے. ماں کے چہرے پر جو آنسو ٹپک رہے تھے، بچے نے اپنے ننھے ہاتھوں سے ان آنسوؤں کو پوچھتا ہے اور کہتا ہے، میری امی جان آپ مجھے لے کر چلیے نبی کی بارگاہ میں. ہمارے گھر میں کوئی نوجوان شخص نہیں ہے تو کیا ہے، میں تو ہوں، مجھے لے چلو نبی کی بارگاہ میں. میں آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا، آقا مجھے طلب کر لیں گے تو میں جنگ میں جاؤں گا. جب بچے نے یہ ماں سے کہا تو ماں کہتی ہے، بیٹا بھی تیری عمر نہیں ہے جنگ میں جانے کی، صحیح طریقے سے تو تلوار نہیں پکڑ سکتا، اٹھا نہیں سکتا، ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، کمزور ہے. لیکن بیٹے نے بار بار جب یہ ماں سے کہا
तो माँ उस बच्चे को लेकर नबी की मोहब्बत में अपने घर से रवाना होती है, आका की बारगाह में हाजिरी देती है, सलाम पेश करती है। मेरे आका सवाल करते हैं, ए खातून कैसे आना हुआ? औरत कहती या रसूल अल्लाह, मेरे घर तो कोई नौजवान शख्स नहीं है, मेरा कोई नौजवान बेटा नहीं है, लेकिन ये 6 साल का बच्चा है मेरे पास। या रसूल अल्लाह, इसको आप तलब कर लीजिए, इसको जंग में लेकर जाइए, ये शायद आपका कोई काम आ जाए। हज़रात मोहतरम, मेरे आका ने कहा है खातून, ये छोटा सा बच्चा जंग में जाकर क्या करेगा? ये काफिरों से कैसे मुकाबला करेगा? इसकी उम्र बहुत कम है, इसे घर लेकर जाओ। लेकिन बच्चे ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान जाए। ऐ मेरे प्यारे आका, मैं जंग में जाने के काबिल तो नहीं हूँ, मैं तलवार उठाने के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह, मुझे जंग में लेकर चलिए। काफिर जब तीर चलाएंगे, जब भाले चलाएंगे, वो तीर आपके सीने के तरफ जब आएगा तो मैं आपके आगे खड़ा हो जाऊंगा और उस तीर को अपने सीने पर खाकर शहीद हो जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, ये 6 साल के बच्चे का जज्बा है। आप अपने बच्चों का जज्बा ले, हमारे नौजवानों के अंदर भी वो जज्बा नहीं है, लेकिन कसम खुदा की आप वो जज्बा पैदा कीजिए अपने अंदर। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिसमें से कब्रों परवाज कर जाए। अगर ईमानदारी से आप अपने सीने पर हाथ रख के सोचेंगे कि मैं जो जिंदगी गुजार रहा हूँ इस दुनिया में रहकर, क्या मेरा ये तरीका, मेरा ये रहना सहना आपको जन्नत ले जाएगा? कसम खुदा की आप जब खुद से सवाल करेंगे तो जवाब यही मिलेगा आपको कि हमारा तरीका गलत है। हम कौन सा मुंह लेकर जाएंगे सरकार की बारगाह में? जब कब्र में सवाल करेंगे फरिश्ते आकर तो उनको क्या जवाब देंगे? आप खुद से जब फैसला करेंगे तो आपको ये जवाब मिलेगा। लेकिन आइए, बस आपको बेदार करने के लिए ये 2-3 बातें मैंने आपके ज़हन में उतारने की कोशिश किया। अब आइए मैं अपने मौजू पे आता हूँ। मैंने खुदा पढ़ा था, हदीस का टुकड़ा पढ़ा था, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे आका फरमाते हैं निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जो इससे रगबत किया, जिसने इससे मुंह मोड़ा, वो मुझ में से नहीं। बस आखिरी पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूँ, इसके बाद आपकी इमाम साहब की तकरीर होगी। ईमानदारी से आखिरी बात आप अपने ज़हन में जो है कि बसाएं और उस पर अमल करने की कोशिश करें। देखिए, हज़रत फातिमा जो हमारे रसूल की बेटी है, सैयदा फातिमा का निकाह कैसे हुआ, बस इनका थोड़ा सा तज़किरा करूँगा, उसके बाद आपके सामने से रुखसत हो जाऊँगा। देखिए, सैयदा फातिमा का हाथ मांगने के लिए बड़े बड़े लोग जो है कि आका की बारगाह में हाजिरी देते थे, लेकिन मेरे आका उनको ये कहकर टाल देते थे कि मेरी बेटी सैयदा फातिमा का निकाह अल्लाह के मर्जी से तय होगा। कहिए सुभान अल्लाह। वो कैसी खातून है जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार है सैयदा फातिमा, उनका शादी कैसे हुआ, कितनी सादगी थी उनकी शादी में, मुलाहिजा कर ले। और आज हम हमारे घरों में, आपके घरों में कैसी जो है कि शादियाँ होती है, उसका भी आप जायजा लें। तो मेरे आका की बारगाह में बड़े से बड़े लोग आए, लेकिन मेरे आका ने उनको ये कहकर टाल दिया कि मेरी बेटी सैयदा फातिमा का निकाह अल्लाह के मर्जी से होगा। हजरत उमर, हजरत अबू बकर, ये दोनों लोग हजरत अली की बारगाह में जाते हैं। गौर से सुनिएगा, बस दुनियावी बातें मैं आपके सामने नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कुछ बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा अंदाज नहीं है तकरीर करने का, लेकिन आपका जो मजमा है यहाँ पर, तो बिल्कुल उसी हिसाब से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है कि बड़े बड़े लोग आए सैयदा फातिमा का हाथ मांगने के लिए। देखिए, हमारे जमात के एक साहब हाजिर हो गए, इनकी भी थोड़ी सी बातें आपको समाप्त करनी होगी। आइए इनका इस्तकबाल नारे तकबीर से कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना हबीना मौलाना बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये हजरत उमर, हजरत अबू बकर, ये दोनों लोग किसके पास गए? मौला अली की बारगाह में, हजरत अली की बारगाह में, जिनको मुश्किल कुशा कहा जाता है, शेर खुदा कहा जाता है, इनकी बारगाह में ये दोनों लोग गए। जाने के बाद दोनों लोगों ने कहा, ए अली, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत
हसीन और जमीन है, आप क्यों नहीं जाते नबी की बारगाह में सैयदा फातिमा का हाथ मांगने के लिए? कहिए सुभान अल्लाह। वाकई मौला अली बहुत खूबसूरत थे। मैं उनकी खूबसूरती क्या बयान करूँ। आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी उनके नस्ल के जो औलादे हैं उनका चेहरा देखने के बाद ईमान ताजा हो जाता है। तो आप अंदाजा लगाए जब उनके नस्ल के बच्चे इतने खूबसूरत है तो मौला अली कितने खूबसूरत रहे होंगे। तो ये दोनों लोग जाकर मौला अली की बारगाह में कहते हैं, आप क्यों नहीं जाते नबी की बारगाह में सैयदा फातिमा का हाथ मांगने के लिए? मौला अली कहते हैं, तो मेरे पास तो रहने के लिए कुछ भी नहीं है, घर भी नहीं है, मैं कौन सा चेहरा लेकर जाऊं नबी की बारगाह में। लेकिन दोनों लोगों ने जिद किया तो मौला अली आका की बारगाह में हाजिरी देते हैं, सलाम पेश करते हैं, मुसाफा करते हैं, बैठ जाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, अली कैसे आना होगा? बस इस वाकया को मुख्तसर करके बयान कर रहा हूँ, बड़ा लंबा वाकया है, लेकिन हमारे जमात के साहब हाजिर हो गए तो इनको भी मौका दिया जाएगा और हजरत का हुक्म है कि ऐसा से पहले महफिल को खत्म नहीं किया जाएगा। सुनिए आप, तो मेरे आका की बारगाह में मौला अली हाजिरी देते बैठ जाते हैं। मेरे आका ने पूछा, अली कैसे आना होगा? अली कैसे आना हुआ? मौला अली का जवाब सुन ले। मौला अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह ऐसे ही चला आया। मेरे आका फरमाते, अली आज तेरा आना ये नहीं बताता कि ऐसे ही चला आया, कोई ना कोई मकसद लेकर के आए हो। अल्लाह अल्लाह, जिनकी निगाहों से जमीन का कोई जर्रा छुप नहीं सकता, आसमान का कोई कोना छुप नहीं सकता, उनकी निगाहों से अली की दिल की बात कैसे छुप सकती है? मौला अली से आका कहते, अली कोई ना कोई मकसद लेकर के आए हो, बताओ मकसद क्या है, कौन सी ऐसी बात लेकर के आए हो? मौला अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह दिल की बात बताने में मुझे शर्म आती है, हया आती है। अल्लाह अल्लाह, कितना मुकद्दस जात है मौला अली का। आज हमारे घर के नौजवान बच्चे किसी भी लड़की का हाथ पकड़ के मार के करीब आते हैं, कहते हैं माँ ये तेरी बहू है। ये कहाँ का रिवाज है? मौला अली दिल की बात बताने में कहते हैं, मुझे या रसूल अल्लाह शर्म आती है, हया आती है। अल्लाह अल्लाह, मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि मौला अली की हर बात पर जो है कि आप अमल करें, उनके हर जुमले पर जो है कि आप अमल करने की कोशिश करें। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ अली मैं बताता हूँ तुम क्यों आए हो। तुम्हारे आने से पहले अल्लाह का एक फरिश्ता मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि आपकी बारगाह में अली आ रहे हैं। क्यों अली आ रहे हैं? इसलिए अली आएंगे और आपसे सैयदा फातिमा का हाथ मांगेंगे। जैसे ही मेरे आका ने जुमले को दोहराया, मौला अली शर्मा गए, गर्दन नीचे झुका लिए। मेरे आका वहाँ से उठे, उठने के बाद सैयदा फातिमा की बारगाह में जाते हैं। सुनिए आप भी किसी बेटी के बाप होंगे, ईमानदारी से सुन ले, कसम खुदा की, और उस पर अमल करने की कोशिश करें। ये सारी बातें आपको किसी चौराहे पर नहीं बताई जाएगी, ये बातें आपको मिलाद में भी बताया जाता है। मेरे आका वहाँ से उठे, उठने के बाद सैयदा फातिमा की बारगाह में गए। ये मसला सुन लिया, आपकी अगर नेक बेटी है और आप उसकी निकाह करना चाहते हैं तो आप ये एक मसला ये भी है, नबी की ये सुन्नत मुबारका है कि आप अपने बेटी से भी इजाजत लें। इसलिए मेरे आका ने सैयदा फातिमा से इजाजत लिया था। मेरे आका गए सैयदा फातिमा के पास, कहते मेरी बेटी सैयदा फातिमा मैं तेरा निकाह अली से करना चाहता हूँ, क्या तू इजाजत देती है? हज़रत फातिमा के होठों पे हल्की सी मुस्कुराहट आई, आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा आका समझ गए कि सैयदा फातिमा राजी है। ये मसला मदरसों में पढ़ाया जाता है, जब बच्ची खामोश आंखों से रो दे तो समझिए उसकी इजाजत है, वरना उसे इनकार करना होता तो ज़बान से कह सकती थी। मेरे आका वहाँ से उठे, उठने के बाद मौला अली की बारगाह में आए। आने के बाद कहते हैं, अली जाओ मेहर का इंतजाम करो। किस चीज़ का इंतजाम करो? मेहर का। अब थोड़ा सा उत्तर मैं आपका थोड़ा जायजा लूँ, थोड़ा सा हाथ उठा के बताए कितने लोग शादीशुदा हैं? हाथ उठा के बताए। माशाल्लाह 3-4 लोग, बाकी सारे लोग कुंवारे हैं। है अल्लाह तौफीक दे कि सब लोग सुन्नत मुबारका पे अमल करें। सुनिए आप, महर कितनी कीमती चीज़ है। सुनिए आप, मेरे आका फरमाते ही जाओ महर का इंतजाम करो। मेरे आका ने एक जगह फरमाया, जो लोग महर देने का इरादा नहीं रखते हैं, शादी कर लिए हैं, महर देने का इरादा नहीं है। आज तो जितना भी महर बनवा देते हैं, लेकिन बहुत कम होता है कि लोग उसको अदा करते हैं। अक्सर ये होता है कि मरने के बाद उनके जनाजे के करीब उस खातून को लाया जाता है
और महल जो है कि माफ करवाया जाता है। ये रिवाज है हमारे कौम में। लेकिन सुनिए, आप मेरे आका फरमाते हैं जो लोग महल देने की नियत नहीं रखते हैं, कल कयामत के दिन उनको जानियों के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, कितना सख्त आजाद है महल अदा नहीं करने का। तो जो लोग अभी तक अदा नहीं किए, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अपना अपना महल जल्द से जल्द अदा करने की कोशिश करें। तो मेरे आका ने क्या फरमाया, जाओ महल का इंतजाम करो। मौला अली कहते हैं, या रसूलल्लाह, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या महल में दूं। मेरे आका ने एक कीमती तोहफा दिया, एक कीमती सामान दिया और कहा कि जाओ इसे बेचकर इसका रकम लेकर के आओ। मौला अली इसका रकम लेकर के आते हैं और जो है कि अब एक बात और रुके सुनिए आप। आज हमारे घर से बारात निकलती है, हमारे घर के नौजवान बच्चे बहुत अजीबो गरीब माहौल में बाराती बन के जाते हैं। उनका कमर लचकता हुआ जाता है, कानों में जो है कि गाने की आवाज होती है, लेकिन कसम खुदा की आप सुनिए आप, मौला अली के घर से जो बारात निकली थी और वो बारात पहुंची थी बाबुल इल्म के दरवाजे से, हज़रात मुहतरम जो बारात मौला अली के दरवाजे से निकलकर मदीनतुल इल्म के दरवाजे पर जो बारात पहुंची थी, उस बाराती में कैसे लोग थे, बड़े सहाबा इकराम थे। बाबुल इल्म के दरवाजे से जो बारात निकली और पहुंची मदीनतुल इल्म के दरवाजे तक, बारातियों के ज़बान पर कोई दुनियावी बातें नहीं थी, बल्कि जितने सहाबा इकराम थे सब कुरान पढ़ते हुए जा रहे थे। अल्लाह अल्लाह, कितनी शान से बारात निकली है। आज हमारे घर से जो बारात निकलती है, आप तो उस बारात को अपनी आंखों से देखते भी हैं, तभी तो बच्चे नाफरमान पैदा होते हैं। शादियों में इतने खुराफात रस्म जो है कि हम लोग उसमें डाल देते हैं, इसलिए बच्चे बाप का मकाम नहीं समझते, माँ का मकाम क्या है बच्चों को पता नहीं होता है। हज़रात मोहतरम नबी के इस सुन्नत मुबारका पे अमल करे और मौला अली की बारातियों का भी जायजा ले और उस पर अमल करने की कोशिश करे। सबके ज़बान पे कुरान की आयत है, सब कुरान पढ़ते हुए आका की काशाने नबूवत तक हाजिरी देते हैं। बारातियों का इंतजाम मस्जिद नबी में किया गया, बाराती बैठ गए, मेरे आका निकाह पढ़ाते हैं। हज़रात मोहतरम निकाह पढ़ाने के बाद अब लड़की वाले अपने घर और लड़के वाले अपने घर। ये बात उनके सुन लिया। एक रिवायत के मुताबिक सैयदा फातिमा का रुखसती जो है 3 साल के बाद हुआ और एक रिवायत के मुताबिक फौरन रुखसती हो गया। हम भी अपने बच्चियों की जो है रुखसती करते हैं, लेकिन उसका माहौल क्या होता है सुनिए आप। मेरे आका ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा के सर पे, कसम खुदा की जब ये जुमला मैं अदा करना चाहता हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, वो कैसा मंजर था रुखसती का। मेरे आका सैयदा फातिमा के सर पे अपना हाथ रख के कहते हैं, ऐ मेरी बेटी सैयदा फातिमा, आज अगर तेरी माँ जिंदा होती तो इससे बढ़कर इंतजाम करती। बज़ाहिर में तेरे बाबा जान के पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे आका ने सिर्फ एक चादर दिया था। अगर आप भी किसी बेटी का बाप है तो इस मंजर को अपने दिल में बसाए। मेरे आका फरमाते हैं, मेरी बेटी सैयदा फातिमा, मेरे पास सिर्फ एक चादर है, वो भी कैसा चादर है, उस चादर में 17 पेवंद लगे थे। अल्लाह अल्लाह, कितने पेवंद? 17 पेवंद थे उस चादर में। उनमें से एक पेवंद जो था ऊँट के चमड़े का था, बाकी सारे कपड़े के थे। मेरे आका ने वो 17 पेवंद वाला चादर सैयदा फातिमा के सर पे रख के कहते हैं, ऐ मेरी बेटी सैयदा फातिमा, अगर तेरी माँ जिंदा होती तो इससे बढ़कर इंतजाम करती। बज़ाहिर में तेरे बाबा जान के पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, बज़ाहिर में, वरना मेरे मुस्तफा चाहते, और आपने सुना भी होगा, किताबों में पढ़ा भी होगा कि नबी के चाहने से चांद ने अपना सीना चीर लिया, नबी के चाहने से डूबा हुआ सूरज पलट आया, नबी के चाहने से दरख्त अपनी जगह से उखड़कर नबी के कदमों में आकर कलमा पढ़ने लगा, नबी के चाहने से बंद मुट्ठी में कंकर जो है कि कलमा पढ़ने लगा। तो क्या नबी के चाहने से जन्नत से जोड़े नहीं आ सकते थे? बिल्कुल आ सकते थे, लेकिन मेरे आका ने ये गुनहगार उम्मतियों का ख्याल किया, हम लोगों का ख्याल किया। इसलिए मेरे आका ने सिर्फ एक चादर सैयदा फातिमा के सर पे रख के कहते, मेरी बेटी सैयदा फातिमा, आज अगर तेरी माँ जिंदा होती तो इससे बढ़कर इंतजाम करती। आज तेरे बाबा जान के पास बज़ाहिर में तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हज़रात
ایسی آپ شادیوں میں جو آپ رسم جو پیدا کرتے ہیں، آپ یہ نبی کے سنت مبارکہ پہ عمل کریں اور مولا علی سیدہ فاطمہ کے اس شادی کا جو ہے کہ جائزہ ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جب اس پر آپ عمل کر لیں گے، جب جوڑے مکمل ہوں گے اور ان کے نسل سے جو بچے پیدا ہوں گے تو امام حسین تو نہیں بن سکتے لیکن غلام امام حسین ضرور بن سکتے ہیں، نبی کا عاشق ضرور بن سکتے ہیں، نبی کے چاہنے والے ضرور بن سکتے ہیں. تب جا کر ان کو پتا ہوگا کہ نبی اپنے باپ کا مقام کیا ہے. تب وہ بچے کہیں گے کہ میری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، میرا باپ جنت کا دروازہ ہے. دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ میری چھوٹی سے تقریر پہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ جیسے گنہگار کو کرنے کی